My posture and everything is fine, sir. ठीक है. All right. Welcome to Candid Podcast. For the first time in the history of Candid Reviews, we have a podcast going on. Or what better time to do it in a lockdown? हाँ? लॉकडाउन के टाइम ही कर सकते हैं. सब लोग वेले बैठे हुए हैं. बड़े से बड़े शातिर लोग यहाँ पर आए हुए हैं. So भाई लोग कैसा चल रहा है? Gajab, Hasu, super duper awesome. Same here. I'm just enjoying myself in the lockdown, cooking food, having good food made by mom. Food and more food and more food. That's it. मैंने जिंदगी में पहली बार सब्जी खरीदना सीखा, पहली बार कुकिंग सीखा. And me fish. Being a Bengali, I have no shame to say whatsoever that I don't know how to buy fish. But in this lockdown, I actually learned to buy fish, that too from my own home. मेरे लिए तो ये था कि बीजिंग में सब्जी कैसे खरीदेंगे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ पता है ना कि अरे भाई यहाँ सब वही सब खाते हैं, तो सब बीजिंग में सब्जी कैसे खरीदने का है. तो मेरे दोस्तों ने हेल्प करा, लेकिन मैं अंडा खा लेता हूँ. मेरा सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया और मैं इतना अच्छा बेहतरीन कुक करता हूँ. देवाशीष सर और सप्तऋषि, यू आर ऑल गोइंग टू लव इट. All right, so for our viewers, just to introduce all of our viewers to our speakers in this podcast, we have Shivam Mishra. He is currently working in Beijing, China, in a top corporate house of experience in digital world. He was into a gaming division, then he moved on to marketing and lots of PR. More than his corporate world, I know him personally. मैं काफ़ी सालों से शिवम के साथ हूँ और हम लोगों ने काम किया साथ में, and I believe he is a guy who talks his heart out. You might feel not so good about his opinion or might really agree with him, but the best part about him is he's an open book. वो जो भी बात करेगा दिल से बात करेगा. उसको ये टेंशन नहीं लेना कि आप क्या सोच रहे हो, because that is the best way यार. अभी के ज़माने में ना you should be open about things. घुमा फिरा के बात कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये बंदा उसी में से एक आता है. So which is why I love him and I really wanted him to be here in this podcast, because he is a true Indian who is outside and in a country from where it all started. So I wanted a perspective from his side as well, what he went through, how he's coping up, and all different aspects. वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे. Our second speaker is Dr. Saptarishi Banerjee. He is my cousin. He is my uncle's, मेरे चाचा जी के बेटे हैं, and I know him since childhood. And he has been a full-time doctor in a small town called Bardhaman in West Bengal. And he is an incredible swimmer. During his school time, he was a champ. And now he has, apart from his doctor world, his whole environment, whole parallel universe of medical world, he is a poet. He writes, he composes songs. He has his own band where he is the main lead singer. And he has a very distinctive voice. I'm sure you have seen the last video that was up on my channel, a collaboration with Moinak and Saptarishi. He has a very distinctive voice, which is why I love his creative side of his, which is why how we have got connected. Both of you, आप दोनों ने ही देखा है मेरे चैनल में. So whosoever is watching this, आप किसी ना किसी रिव्यू में शिवम था, किसी ना किसी रिव्यू में सप्तऋषि था. So I just wanted to just get all of us together, talk about this situation, some good things, some bad things, some truly honest things, and some things to look up to. पॉडकास्ट होते हैं अपनी मन की बात के बारे में बात करते हैं. मन की बात नहीं बात करेंगे तो चलेगा. बोलते हो अगर तो दिल से नहीं बोले तो बात बनेगी कैसे, और अगर बात ना बने तो फिर आगे आपका काम कैसे चले. इसीलिए दिल की बात, इसीलिए दिल की बात बोलो, क्योंकि दिल की बात बोलने से कोई हर्ज नहीं है. आज बंदे को बुरा लगेगा पर कल वो सोचेगा बंदा ने एटलीस्ट सच तो बोला. कैंडिड पॉडकास्ट. I'm feeling so good. I'm really feeling good. I'm feeling like I'm at home. I'm feeling like कि अब तो भैया इंडिया के लोगों से बात करूँ तो I'm feeling more open. तो हो सकता है आपको कई जगह बीप इस्तेमाल करना पड़े एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि अपन इंडियन है ना, तो इंडिया पूरा छलकेगा बातों में. अरे निकालो. So while I speak, I am lucky enough to have sabzi walas coming here allowed. They poor guys trying to do their best to earn their livelihood and share vegetables with us.
Romy, Saptarishi, I call him Romy, by the way, that's his nickname. But Saptarishi, what do you think? How are you feeling coming back to the channel once again? See, this channel is a regular for me, and this is one of the platforms where I get to express the part of me that is hidden otherwise. Because it said I live in a world which is morally very depressing. और अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है, तो I'm feeling so good that I can come here and I can share some views and thoughts and I can talk to people. And meeting Shivam Bhaiya for the first time, he has always been a person that I looked up to in the videos of candid reviews and all. So it is, I'm feeling good, and with you, every time it's home. It's home. थैंक It's यू। the और यहाँ पे how मैं एक और मेंशन करना यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा। जिंदगी में पहली बार होता है कि आप किसी से मिले हो बट एज अ व्यूअर। मैं सप्तऋषि से पहले मिल चुका हूँ एज अ व्यूअर, मैंने वीडियोस देखे हैं एज अ व्यूअर, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लाइव में हम बात कर रहे हैं। इट्स रियली रियली नाइस एंड आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग फर्दर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड थैंक यू सो Great. मच देवाशीष सर फॉर इनवाइटिंग मी on your channel, and it's feel like it's my channel too. It Thank you is, so it much. is, it channel is the is. family, That and is it represents the family. absolutely, Yeah, absolutely. I'm- So let's begin this debate, shall we? Because nation wants to know what a Indian from Beijing thinks and what a doctor from a small town thinks. Let's begin this debate. So, guys, for our viewers, the format goes like this. We will have 3 questions. All of us will have 3 questions, and we will be asking those 3 questions. So I will have 3 questions. I will be putting it forward to Saptarishi and Shivam. So will be done by Shivam and Saptarishi to all of us. So in total, we will have 9 questions. We'll try to keep it not short. We'll distinctively express ourselves. So 3 questions, total 9 questions, and then once we are done, we'll talk about buffoons, chutzpa, chutiapa जो हो रहा है हमारे country में. You can talk about Beijing also if you have faced any, and we'll talk about some silly and utterly stupid things that has been happening around us. So we'll have a laugh, probably we'll abuse, it can be a rant also. So we'll do that. So 3 questions, honest opinion, and then talking about the buffoons. Okay? So Shivam, Okay. or Saptarishi, you want to start? Let's start with Shivam Bhaiya, because Okay. he is now looking the most macho of us. So let's hear from the horse's mouth from Beijing, actually from China where it all started. Everybody is so excited. So can I put the question first? So we'll have one question each. So total in 3. Okay. So I'll put the question first. So feel free to express. Okay. My first question is, what is the first thing? Okay, and in case you have a common question, it's good because I won't be answering my question, like you won't be answering your question. So in case we have duplicated question, it's good, right? Okay, so to you, Shivam and Saptarishi, Dr. Saptarishi, what is the first thing you would do after this pandemic is over? Once and for all, when it is completely over, it is absolutely gone. Government has registered it, the whole country has registered it, WHO has announced it that there are 0 cases of COVID-19 throughout the world from all the countries. What is the first thing you would do, Shivam? So first of all, I'm definitely going to book the ticket to India. I really want to visit India. I want to see my family. I miss so many festivals, and even I'm going to miss Raksha Bandhan again. Last year भी miss हुआ था, इस बार भी. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सबसे पहले इंडिया आऊँ. So coming to me, मैं जो पहला करना चाहता हूँ after all these things end, after there is 0 cases worldwide, I just want to go out and take a lung full of fresh air. I want to breathe normally on the road. I might just shout out from the windows of my car, and then I want to go to my all my colleagues who are now frontline workers. Some of them are working day and night. Some of them are getting their tests coming as COVID-19 positive, and we are quite terrified at the moment कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है. Like, are they going to survive? Are they going to make out to the other side? So I will though go doctors to them. infected by your immediate colleagues. Yeah, my immediate colleagues. So I just want to go to them. I want to hug them, and I want to clap.
I want to applaud their whatever they did because I know कि अगर एक डॉक्टर एक COVID-19 पेशेंट को भी अभी ठीक कर सकता है तो it's a huge thing for them. And finally उसके बाद I really want to go out and meet some of my patients because for a long time I couldn't meet some of the chronic patients that I have. वो लोग follow up में नहीं आ पा रहे हैं. They are not being able to call also. अगर call भी कर रहे हैं तो मैं उनको दवाई भी दे रहा हूँ तो they are not being able to buy those medicines. And I know because of this pandemic, the regular life, जैसे कि किसी इंसान को शुगर है, किसी इंसान को हाइपरटेंशन है, they only rely because of us, on us, they rely on us, right? उन लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब एक बार बोल देंगे हम लोग को देख के कि ठीक हो आप, तो वही उनके लिए दवाई है. And I am not being able to do that for the past 2.5 months, right? So I really want this to end so that I can meet that patients because they need us. So these are the few things that I want to do. So amidst this, I would like to, through this podcast, I would like to say that I am really proud to be an Indian, to be a citizen of India, to be a citizen of my state because all the state governments and the central government, they have taken beautiful and bold measures. ये हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक struggling economy like India ऐसे 40 दिन के लॉकडाउन पे जा भी सकते हैं. We thought कि it might so happen कि एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए लॉकडाउन पे जाएंगे, उसके बाद जितना भी होगा and we will have to open everything because otherwise people are going to die of hunger. So this is also one thing that I'm going to do after this pandemic ends. I'm just going to make a blog of my own where I'm going to appreciate some of the efforts taken by our government, the NGOs, the frontline workers. So that is one of the main agenda in my mind at the moment. Great. Rightfully answered. Thank you, guys. Shivam, you want to shoot your first question? I have first question to सप्तऋषि भैया. सप्तऋषि जी, मेरे को आप एक बात बताइए. जैसे मेरे को ये पता लगा, मैं अभी अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है. आराम से. ऐसा सुनने में आया ना जैसे कि अभी अलग अलग कंट्री में कोविड-19 की जो भी पेशेंट हैं उनकी टेस्टिंग के अलग अलग मेजर हैं. ऐसा क्यों है? एक पर्टिकुलर मेजर क्यों नहीं है? पर्टिकुलर मेजर से होना चीजें, तो मुझे लगता है कि शायद आसानी हो. अभी इना पे क्या होना है कि मान लीजिए हम ठीक हो गए, इंडिया बिल्कुल ठीक, चाइना बिल्कुल ठीक, लेकिन कभी तो टूरिज्म स्टार्ट होगा, फ्लाइट आएगी या कार्गो आएगा, कभी तो कहीं से आ सकती है ना चीजें. सो एक पर्टिकुलर मेजर क्यों नहीं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं लग पाया, मैं सोचा आपसे पूछूं. Okay, this is a very technical question and I will try to answer it as lucidly as possible for everyone, including you. So the first is, एक चीज होता है कि आप मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पर एक पॉपुलेशन है of 100 people. Okay, 100 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, and they are living their normal life. Now suddenly a new infection, एक new disease उस population में introduce हो जाता है, right? So in technical terms we call this population virgin population, right? And this new infection, the threat, okay? तो अभी अब देखें तो ये जो 100 लोग हैं population के, all of them are susceptible to this infection. I mean to say that all of them can get this infection. So as the time progresses, ये population में एक करके बंदा infected होते चले जाएंगे. कुछ बंदे they will recover and कुछ बंदे will go towards mortality, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है? तो as time will wean off, what will happen is that this new infection will find lesser and lesser number of people to infect because already they are infecting, और एक टाइम आएगा जब नया infection होने का chances कम है. So this is the technical term that we doctors use. This is the technicality we use. Abhi, since this COVID-19 is a completely new infection, right? So we have to have different screening strategies. हम लोग इसको screen बोलते हैं, right? और ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है. आई मीन टू से, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे इंडिया में पॉपुलेशन कंपोजिशन है, इट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड. आई मीन टू से द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर वर्किंग क्लास पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 20 to 45 इयर्स. ओके, और अगर आप देखें थोड़ा सा बारीकी से तो यू विल सी कि 20 to 45 इयर्स में लोगों में ज्यादा मॉर्बिडिटीज नहीं होते. कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, लाइक हाइपरटेंशन, ये सब कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एल्डरली. अभी इन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लाइक सम ऑफ द स्टेट्स, सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप, द एल्डरली पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एल्डरली. ओके, जहां पर ये इन्फेक्शन की आउटकम बहुत ज्यादा खराब
खराब हो सकता है, राइट? सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इंडिया में लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट करना जैसे हम कर सकते हैं या करेंगे, similar testing strategies cannot be followed in countries where the population of people who can die earlier is more. You getting my point? क्योंकि इटली में बहुत ज्यादा बुढ़ापे वाले लोग थे, तो they had to go to a strategy which is known as mass screening. What they were doing, they were going from door to door and they were screening people. They were taking their samples and saying if they're COVID-19 positive or not. But in India, what we did was we watched the people for symptoms. Symptoms आए, तो we isolated those people with symptoms and we performed the tests among them. Okay, so this is known as opportunistic screening. So अभी ये हम लोग को समझ में आ गया, दो टाइप ऑफ टेस्ट हैं, मास स्क्रीनिंग और opportunistic screening, and this completely depends upon the population composition. जैसे population हो, ये आ गया टेक्निकल टर्म. अभी मैं आपको दूसरे तरफ से बोलता हूँ, क्या होता है, there is a budget spending, expenditure of budget, ये तो आप समझेंगे, right? We have a fixed budgetary expense for a healthcare system in India and in this kind of third world countries. जहाँ पर हम लोग को क्या होता है ना, we have to already see what is the total health structure of the country at present, right? हमारे देश में already इतने सारे like Pakistan, India, like South Asian countries, we have a lot of chronic diseases, and it's already the healthcare system is very overburdened, right? And now we cannot afford to spend beyond for this mass screening strategy. मतलब सबको टेस्ट करने के लिए जितने किट्स जरूरत है, जितना मैन पावर जरूरत है, we cannot like spend the money on this. Okay, but in countries like Italy, where although the population of geriatric is more, but the chronic diseases are less, so they are spending more and more of their healthcare budget beyond this COVID-19 testing strategy. So now the World Health Organization, which is the organization controlling all these things, the strategy for testing, the strategy for treatment, what are they doing? They are giving out strategies in phases with respect to the country और उसके population कैसा है, उसका healthcare expenditure कैसा है. मतलब ये एक country, एक बंदा कितना spend कर सकता है. आप मान लो कि मेरे को और आपको आज अगर कोई disease हुआ, तो what we are going to do? We are going to go to a private nursing home, to a private practitioner, right? लेकिन आप ये सोचो कि हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जो एक सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस में आता है, who cannot afford to go to a private nursing home. They have to go to a government facility. The same thing is happening to these different countries. Now coming to the question, कि tourism तो एक दिन start होगा तो क्या होगा? तो from our previous experiences of this kind of new infections that we have seen down the ages, what will happen, I will tell you, the world is never going to get rid of COVID-19. कभी नहीं हो सकता. Have you heard of polio? Have you heard of polio? Yeah. Polio was a pandemic across the globe during 1960s and 70s. So now what happened is that we started mass vaccinating and something called a herd immunity developed. सारे लोग एक population की immunized हो गए. ये COVID-19 के भी यही होने वाला है, right? As the day progresses, as I said, the number of people who can get infected will reduce. The number of people who can get infected will reduce. और एक टाइम आएगा जब ये वायरस किसी नए इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, because there is no one left to infect. Okay, so that will be the time when the curve is going to go down, but the virus won't go up from this from the face of the earth. It will be there. It will be like a chronic disease. जैसे अब क्या होता है ना, अभी किसी को नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सर्दी खांसी, right? That is also a viral infection. But in a point of time in human civilization, वो normal सर्दी खांसी भी ऐसे ही pandemic था. It took time, but over the course of time, it became a chronic disease which don't give us headache anymore. And this is going to happen same thing with COVID-19. But till then, जब तक ये हम लोग पूरा contain नहीं कर पाते, what I feel is the international traveling agencies will not open up the international boundaries to those countries which have not even been able to contain. Now the containment is on 4 stages: red, okay, orange A, orange B, and green. Okay, जब तक orange A तक नहीं आता कोई country, तब तक international tourism start नहीं हो. और होगा भी तो there will be preventive measures in place like social distancing,
like self hygiene and excessive thermal testing. जैसे frisking होता है airport में, now this will be added. Okay, and this is going to go on, if I am not wrong, of the epidemiological modelings that we have seen, this is going to go on for the next 2.5 years. But as I said, anywhere you go, social distancing norms are a mandate for the next 1.5 years, if I am not wrong. Social distancing will be maintained. जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, सब जगह पर जाके पूरा एकदम खिंजी, मतलब इतना पॉपुलेशन, हम लोग में मस्ती इतना चढ़ा होता है ना कि हम लोग आए चल 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 करके पूरा बल्क में चले, वो चीज शायद नहीं हो पाएगा for the next 1.5 years. If I am not wrong, this is my prediction. It might be different, it might be more, it might be less, but social distancing norms will be in place. Desperate times need desperate measures, and I think since this time is very desperate, and if we can reach these people through different modes and channels of communication, we can teach them कि अगर आप बाहर की कोई स्टेट से आ रहे हो अपने घर वापस, if you are a migrant labor, please go to the nearby healthcare facility, get yourself tested, and then only enter your village or your house. शायद ये difficult होगा, but if we start early, we are going to go there. शायद चाइना के जैसा नहीं कर पाएंगे, but definitely to some extent we will be doing it also. So that's our hope. I'm having an optimistic view around. Great thoughts. Great thoughts. I think I want to add to this that once it is over, I think India as a developing country will, the rural part of our country will definitely, and specifically the bureaucrats and the politicians, they will have a severe learning on the core reason of this whole the toughness level, right? इतना tough क्यों हो रहा है इंडिया में? Because हमारा economic growth is low, population is mainly the concern. So I think we would learn that how significant, how important population control is, how important education is, how important not building statues and building schools and hospital is. So I read an article where said अभी अगर 3,000 करोड़ रुपए से आप हॉस्पिटल और स्कूल बना लेते तो आपको होटलों को आइसोलेशन कैंप्स में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. So I think this I just want to add a point here. I would also like to laud those Indian businessmen, those Indian, especially Ratan Tata. They have shown what true Indian means. बहुत सारे businessmen हैं. I don't want to go into controversies, but there are few people who are actually doing it from the heart. और मीडिया हाइप के लिए नहीं. And Ratan Tata time and again have proved what kind of Indian he is. वो भारत की बेटा है. मतलब he has proved time and again that he is there for Indians, and I love the gesture that he showed. I would add Asim Premji as well to this list. There are many. Definitely. So I have heard about Asim Premji doing several things for several years. So his contribution to this pandemic is applaudable. ये Great. चीज़ तो है, जैसे कि कुछ लोगों ने सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ लोगों ने वाकई सर जैसा आपने कहा, अजीज प्रेम जी कहा, ऐसे महिंद्रा रहे, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इन लोगों ने जो अपना काम किया ना वो एक आउट ऑफ द बॉक्स. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक इट्स गुड, philanthropy is good, but I really appreciate टाटा सर, क्योंकि मैंने उनका देखा है, सारा सब कुछ पढ़ा काफी कुछ. ही इज माय वन ऑफ माय इंस्पिरेशन. और उन्होंने जिस तरीके से है ना कि वो कभी उन्होंने गाया नहीं है चीजों को लेके, इतना कुछ किया है. इवन कोई नहीं, दादाजी सभी करते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, सेम प्रेम सर भी. तो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड वो लोग किस तरीके से हमारे देश को और ज्यादा मजबूती देते हैं इन चीजों में आगे जाके, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते. Great. तो यहाँ पे एक सिमिलर चीज मेरे अंदर एक क्वेरी आ रही थी आपसे पूछने की, मैंने नोट भी किया था, कल मैं देख रहा था कुछ वीडियोस सप्तऋषि भैया आपसे, जैसे कि टेस्टिंग का मैंने आपसे पूछा कि मेजर अलग अलग है. ऐसे ही मुझे पता लगा कि टेस्टिंग की जो किट है, ठीक है, वो कोई एक कंपनी की तो है नहीं, एक आप बना रहे हो, दूसरे बना रहे हैं, उसके भी मेजर है. ऐसा ये बात सच है? ये बात सच है क्या? उसके भी मेजर अलग अलग? Yeah, that is partly true. Actually, what happened, so what happens is that it's a small technique which is known as polymerase chain reaction, PCR. उसके आधार पे सारे टेस्ट बेस हैं, जितने भी टेस्ट आप देख रहे हो, सारे कंट्रीज, सारे कंपनी, the basic principle is the same. But what is happening, the difference is becoming in the number of samples that a machine can test. Number one, there is the difference. And number two is how fast
the test kit and the testing machine is giving you the answer. ठीक है? So that's why now what the world is trying to do, different companies are trying to produce rapid testing kits. अभी rapid बोले तो कितना rapid? ठीक है? क्योंकि 48 घंटा पहले लग रहा था, कोई कंपनी अगर 40 घंटे में कर दे तो वो रैपिड हो गया उससे इन कंपैरिजन. कोई दूसरा कंपनी 40 से 36 कर दिया तो वो रैपिड हो गया. अभी ये डिफरेंस हो रहा है, राइट? क्योंकि डिफरेंट कंपनीज आर गिविंग डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट टाइम्स ऑफ टेस्टिंग आंसर्स. तो इसलिए क्या हो रहा है ना, बेसिक प्रिंसिपल वही है, सेम. नाउ द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज हाउ मच टाइम वी विल नीड to stamp a patient as COVID-19 positive or not. इसमें difference हो रहा है. And different pharmaceutical company, drug manufacturing companies are doing it according to their own potential. सबके पास इतना engineering skills और engineering equipment है नहीं कि जैसे अभी चाइना में जो नया किट चल रहा है, I'm sure I'm not wrong. Now it can give you the test within 2 hours, the test result. 2 hours, इतना rapid हो गया. Okay, मतलब अभी चाइना में, मतलब वहाँ. हाँ, चाइना, कोरिया में तो ड्राइव थ्रू टेस्टिंग है. कार टेस्टिंग करके बता देता है. So no, actually drive through testing का मतलब ये है कि they will take the sample and within the time you take to come out of the office or the shopping mall that you have gone into, you will know the status of your condition. So 15 minutes. 15 to 20 minutes. But China में अभी 2 घंटे में बोल रहा है, ठीक है? But these test kits are super duper hyper sophisticated, and it is very difficult for the rest of the countries to manufacture and replicate the same technology. मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन अब आपसे. Okay. ये है सब कि एक साथ क्वेश्चंस डाल दिए. जैसे कि एक इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि अपने देश के लोगों को ये जो भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें एक चीज बताना बहुत जरूरी है. तो क्योंकि टेस्टिंग मेजर बताना जरूरी था कि टेस्टिंग की वैल्यू क्या है, और आपने सारा सब कुछ बता दिया कि अलग अलग चीजों से क्या है. आई होप काफी नॉलेज आपने डीप बता दी लोगों को. एक क्वेश्चन एक बहुत जरूरी है कि अभी कुछ स्टडी आई है यूरोपियन कंट्रीज से और इधर उधर से कि 60 to 70% केसेस में कोरोना के सिम्टम नहीं होते. आपको खांसी, जुकाम, बुखार कुछ नहीं होगा, बट आपके अंदर कोरोना है. हो सकता है कि कुछ लोग जो फॉरेनर्स आए थे इंडिया में या चाइना में कहीं पे भी आए थे, उनके थ्रू ये और फैला है क्योंकि वो टेस्ट किट्स पे नहीं आ पाए लेकिन उनको था. ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ एक तरीके से कि कैसे. मैं आपको अभी एक बहुत मजेदार चीज पूछने वाला हूँ, ठीक है? Since we are kids of 80s and 90s, we have definitely watched Titanic, right? Titanic तो आप लोग ने देखा ही होगा, right? तो टाइटैनिक जाके आइसबर्ग में धक्का तो मारता है, ठीक है? लेकिन वो आइसबर्ग का कितना % ऊपर था, मतलब समुद्र के ऊपर कितना था और नीचे कितना है? It happens with any disease in the world. Majority of the disease यही है. Like the number of cases that we see in a community, जिनके symptoms आते हैं, it's just the tip of the iceberg. The majority of them is hidden. Okay. So I knew this question is going to arise, and to you and all the other viewers who are going to watch this podcast, I want to make these things very clear. पहले से एक पैनिक है, पूरा दुनिया में एक पैनिक फैला हुआ है, जिसका जनरलाइज वर्जन ये है कि कोविड-19 होगा तो आप मर जाओगे. First and foremost, it's not like that. Okay, if 100 people are getting affected, if 100 people are affected with COVID-19, 80 people will have no symptom or limited symptoms, and they do get well. Mind you, they do get well. The rest of the 20 people who are there, among them, 15 people will develop symptoms like fever, like cough, like respiratory distress. They will require moderate hospitalization, moderate treatment, and they will get well. The remaining 5, they are in the danger zone. This remaining 5 are those people majorly belonging to the elderly, that is above 60-65, and people with comorbidities like cancer, like diabetes, like hypertension, like neural problems. Yes, sir. And these people are those people who are requiring ventilators. Among them, 2 to 2.5 people are only dying. So, pehla statistics ye hai. Now, coming to the problem. COVID-19 is the disease which is caused by the virus SARS coronavirus type 2. Coronavirus is this type of virus which पहले भी वो SARS कर चुका है, फिर MARS कर चुका है. All these are coronavirus family.
जो कोरोना वायरस क्या करता है ना, ये बॉडी में एंटर करते के साथ इट फर्स्ट टेक ओवर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स. उसमें वो रैपिडली मल्टीप्लाई करके करके वो इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड दिस एक्चुअली मैनिफेस्ट्स एज द सिम्टम्स. ओके, नाउ people who are like very healthy, who have a beautiful immunogenic diet, मतलब immunocompetent, वो लोग immunocompetent, उसकी immunity बहुत हाई है, ठीक है, they can easily combat with this infection. तो उस बंदे या बंदी में कोई सिम्टम आएगा नहीं. But you know, these people are the major headache for researchers, epidemiologists like us, because we call them carriers, rather silent carriers, Secret or agents. asymptomatic carriers. Okay, what will they do? They will look like me, Devudada, and you at the moment. They have COVID-19 virus inside them. They won't show any symptom. They will go out following restrictive measures. They will talk with someone without a mask, and because of their droplets that is going to come out while they are talking, they are going to infect the person in front of them, who might be a person with low immunity, and now they are spreading the virus even without showing symptoms of their own. Now that is the problem. और ये किसी देश का, किसी डॉक्टर का, किसी लैब का कोई दोष नहीं है, because उनके अंदर जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, उनके अंदर वायरल कॉपीज जो हम देखते हैं इतना कम है, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि the technology there is in the test kit cannot detect it, right? And these are actually the group of people we are most scared about, because they form that huge part of that iceberg beneath the ocean, because they are not showing any symptom. And once the lockdown ends, or once the social distancing measures are out of place, they will still carry the virus inside them and they will spread. Oh. That is the problem. That's scary. So Saptarishi, I know it's a daunting task, but what I see as a solution, as a plausible solution, is growing our own immunity. Yeah, exactly. I think because it is like a small example that I saw yesterday was my locality had sanitization done by two person. So they came, they were fully covered, and they were just spraying all throughout. Some of the residents asked कि मेरे staircase में भी कर दो, मेरे सीढ़ियों पे भी कर दो. तो मैंने देखा कि उनके सीढ़ियों पे कर रहे हैं, तो मेरे सीढ़ियों पे भी करना चाहिए. तो मैंने फिर वापस जा रहे थे, मैंने बोला कि आप मेरे सीढ़ियों पे भी कर दीजिए. तो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन दे डिड दैट. देन आई स्पोक टू माई RWA चीफ, माई रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन चीफ. आई जस्ट आस्क कि ये सिलेक्टिव जो बोल रहे हैं उन्हीं की सीढ़ियों पे कर रहे हैं, बाकियों के नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने ना एक सिंपल लाइन में बोला कि हाउ अबाउट वी ऑल डू आवर ओन स्टेयरकेस. साबुन पानी तो है, डेटॉल डाल के, साबुन पानी डाल के अपनी सीढ़ियों को खुद धो लो. So what I am doing is, the point is, I am creating my immunity, my house immunity, my own immunity, by making sure I speak to a health physician, because this is a pandemic where I will have to speak to my doctor and tell me that मैं अपने family और मैं अपने आपों को क्या करूँ immunity बढ़ाने के लिए. So I think rather than waiting for the government, be it US government or China government or developing country like us, I will rather try to build my immunity and not do this कि silent secret agent कि मैं carry कर हूँ. Here I want to just mention to my viewers, एक common misconception है कि hydroxychloroquine ये सब खा सकते हैं. ऐसा नहीं है. It's completely wrong. Hydroxychloroquine is a drug which is used to cure malaria, and that too of severe cases. और ये ड्रग का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है. इट इज जस्ट द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस पॉडकास्ट, दैट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज only recommended for healthcare staff like doctors, like nurses, like paramedics who are taking care of COVID-19 patients, and for those who are direct contacts like patient parties, like family members who are direct contacts of these COVID-19 patients. सब जाकर दवाई की दुकान से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ओवर द काउंटर खरीद रहे हैं और टकाटक इसको मार रहे हैं, जैसे like shots. They're like vodka shots. They are taking it. It's so wrong, because today I found out studies are saying
that hydroxychloroquine have a huge number of side effects, and the major one being is one of the heart. Okay, ये heart conduction से interfere करता है, and it can result in a lot of morbidity and mortality जो common people नहीं समझ रहे हैं. तो मैं हाथ जोड़ के सबसे ये मतलब विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऐसे मत खाइए. इट्स नॉट अ मैजिक ड्रग, इट्स नॉट अ ड्रग विच क्योर्स COVID-19. It's a precaution, it's a prevention measure for those who are fighting front line. Please, क्योंकि सप्लाई भी खत्म हो जाएंगे और आप लोग अपने आप को भी मतलब खतरे में डाल रहे हो. Okay, given that, I want to ask this question. Now, my question goes to Shivam Bhaiya. I really wanted to ask. Okay, coming out. See, I am a doctor. Like you have asked me questions which is related to healthcare and all, and this happens to me all the time for the last 10 to 11 years. I am facing this world from the perspective of a doctor. But मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बीजिंग में हो and you are working there as a corporate. You are a normal, sane person in a normal world. Okay, living like a full, complete, good life. What was your feeling when this news broke out? कि ये एक disease आया है जो pandemic हो गया है, and the initial figures, the initial predictions was this कि अपने भारत में ऐसा हो सकता है, ये इटली में इतना बढ़ गया है, स्पेन में इतना बढ़ गया है, and the world is coming under the death grip of this disease. So what was your reaction at that point of time? Okay. ऐसा हुआ था कि ये 20 या 21 तारीख की बात थी जनवरी में, जब ऐसा कुछ चल रहा था. तो मेरे को जैसे कि मैसेजेस इतने आते नहीं हैं मेरे चाइनीज नंबर पे, आते हैं प्रमोशनल, तो वो अटैचमेंट के साथ मैसेजेस, तो आई इग्नोर्ड. मैं पढ़ता, मुझे चाइनीज नहीं आती इसीलिए. बाय द टाइम क्या हुआ, जब यहाँ पे ये चीज आई कि ये बीजिंग में भी बढ़ रहा है या चांसेस हैं बढ़ने के, तो यहाँ पे न्यू ईयर आ रहा था, लूनर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर. तो they try to visit their hometown or somewhere. ये एक तरीके से फेस्टिवल होता है 7-8 दिन का, लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, जैसे दिवाली एक तरीके से आप कह लो. तो काफी बड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे. So I saw like people are going, so many people are, I'm seeing कि सारा सामान पैक करके आए, even in my office. तो मुझे लगा छुट्टियां पड़ रही हैं तो जा रहे हैं लोग. मैं अपनी सोसाइटी में पहुंचा तो मैंने देखा काफी लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ है लिफ्ट में. आज मैं लिफ्ट ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ मैं अपने अपार्टमेंट में. Then what happened? I went outside around 9 or 9:30. I had no idea, zero idea what's there outside. मेरे को मास्क दिया था ऑफिस में, तो एक मैसेज सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाया था कि ये किस लिए है, क्योंकि हमारा एनुअल डे हुआ था, तो सब लोग होते हैं ना एनुअल डे की खुशी में एंजॉय किया, अपने घर जा रहे हैं, तो उस तरीके का एनवायरनमेंट था. मेरे पे मास्क मिले थे तो मेरे को पता नहीं था, तो होंगे किसी चीज के लिए यूज कर लूंगा बाद में. Then I went outside and I saw very lesser people. तो मुझको वहाँ पे पुलिस ने रोक के मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पासपोर्ट पूछाओ मेरा पासपोर्ट या कुछ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. उन्होंने अपने टूटी फूटी इंग्लिश में, तो मैंने उन्हें बताया, एंड दे हैव ऑफर्ड मी सम मास्क एंड दे सेड द पेंडेमिक. तो मेरे को ये वर्ड भी नहीं पता था इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है. तो मैं अपने अपार्टमेंट आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है बात, कुछ है चक्कर क्या, लोग तो घर ही जा रहे हैं ना. उसने बताया कोई वायरस है, वुहान में काफी लोगों की डेथ हो गई है, अभी बीजिंग में 2-3 लोग स्पॉटेड हुए हैं. अच्छा. अब अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो इत्तेफाक से हमारी कंपनी का ऑफिस वुहान में, शामी का ऑफिस भी वुहान में, कुछ कंपनीज है जिनका ऑफिस वुहान में, जिनके एम्प्लॉइज बराबर ट्रेवल करते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड न्यूज थे. तो जो मेरे कॉमन कनेक्शन के लोग थे, दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चन, तुम ये ले रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो. सो मैनी में वी चैट एंड आई वाज लाइक, इज इट दैट मच स्केरी, क्या मैं मर सकता हूँ. तो फिर मैंने जब अपने ऑफिस आया उस दिन में, तो मेरे को काफी पूरा बताया गया ये क्या चीज है, वायरस है, हाथ धोने हैं, जो प्रिकॉशंस अपने इंडिया में चल रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, सारा सब कुछ. देन इवेंचुअली हमारा ऑफ था, तो अगले दिन से, तो नेक्स्ट दिन जो हमारा ऑफ था, सो वी वेंट टू अवर अपार्टमेंट. और लेकिन हमको 2 दिन के लिए आना था, लेकिन हमारे कंपनी ने हमको 2 दिन पहले से ही छुट्टी देना स्टार्ट कर दिया, ताकि घर में रहो, आराम से रहो, सेफ रहो. उसके बाद तो मैंने बीजिंग, जो इतना क्राउडेड प्लेस है, मैंने यहाँ पे कभी भी इतना सन्नाटा नहीं देखा. ऑल्दो मेरा बीजिंग में एक तरीके से सेकंड एनुअल कह लो आप, मैं इससे पहले 1 साल पहले आया था यहाँ पे, इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक जैसे अपना दिल्ली, सेम है. लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कभी नहीं देखा कि एक बंदा नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है.
और उस समय थोड़ा ठंड भी पड़ रहा था एक तरीके से। तो इट टुक टाइम फॉर मी टू डाइजेस्ट कि ये वायरस है, क्या चीज है, क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ ना, हैबिट तो अपने इंडियन वाली रहेगी ना, चलो जरा बाहर देख के आते हैं क्या चल रहा है, अब एक मिनट बहुत देर घर में रह रही है, जरा बाहर देखने क्या चल रहा है। भले ही मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, बट मेरी हैबिट तो है ना, चलो मैकडी का आइसक्रीम ही खाते हैं, देख आते हैं क्या है। देन आई गॉट टू नो द रूल्स कि आप दिन में एक बार बाहर जा सकते हो। देन आई गॉट टू नो कि मेरे को स्कैन कराना है। देन आई गॉट टू नो ही इज माई डॉक्टर, डॉक्टर मेरे को पूरी तरीके से देख रहा है, मेरी बिल्डिंग का डॉक्टर है। देन विद इन 2-3 डेज मेरी भी टेस्टिंग हो गई, ऑल्दो मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर पता लगा कि अब शॉपिंग मार्केट खुलने का भी टाइम है और एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग तभी जाएंगे। आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, कैसे कुक करते हैं, क्या बनाते हैं। मेरे को सिर्फ पानी उबालना आता है और दूध उबाल लेता हूँ, दीज आर माई एक्सपर्टीज। तो मेरे को हेल्प करा, फिर मैं गया शॉपिंग मॉल में। तो वहाँ पे इस दिन मैं बहुत ज्यादा छींक रहा था, आई वाज स्नीजिंग अ लॉट। उन्होंने मेरे को अलग कर दिया कि इसको पहले अलग करो, अलग किया, डबल ट्रिपल स्कैनिंग हुई एक तरीके से। जो डॉक्टर था उस शॉपिंग मॉल को, उसने मेरी बिल्डिंग के डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया मैं यहाँ से आया हूँ। देन उसने मेरे को मेडिसिन दी, उसने मेरे को 2-3 दिन लगातार देखा कि बाकी सस्पेक्ट है क्या है, और उसने मेरे को एक तरीके से दूर किया था कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरा अपार्टमेंट है उस तरीके से, मैं 2nd फ्लोर पर हूँ, 1st फ्लोर पे एक बंदा और है, तो एक तरीके से ना ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन 3 दिन बाद मेरा नॉर्मल ही था कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी है तो इसलिए थोड़ा वो जुकाम, तो इस तरीके से चीज थी। एंड लेटर ऑन व्हेन वी सॉ द नंबर कि कितने लोग मर रहे हैं, क्या क्या सिनेरियो है। कुछ लोग इस समय छुट्टियों में बीजिंग आए थे घूमने के लिए, कुछ मेरे पुरानी कंपनी जहाँ पे पहले शेंजन में था वहाँ के लोग आए थे बीजिंग में, तो उन्होंने मुझसे मिलने का भी कहा था। अब वो जा नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब आउटब्रेक हो चुका है कि हमें खाना नहीं मिल रहा है। अब वो जाएंगे तो क्योंकि उनको होटल में नहीं एंट्री करी, होटल वालों ने उनसे कहा बाहर जाइए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने कहा हम होटल नहीं खोल सकते, ठीक है, तो आपको अपना देखना पड़ेगा। इधर हमारे बिल्डिंग में एंट्री नहीं है लोगों की, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है, गेट पास देना पड़ेगा, आप एंट्री नहीं कर सकते किसी की भी। तो एक तरीके से हल्का सा केओटिक हुआ था, और अचानक से फ्लाइट्स बंद हुए थे। फिर अचानक से समझ में नहीं आ रहा था कि उस फ्लाइट के पैसे वापस होंगे कि नहीं। इवन आई हैड प्लान फॉर 27th of January कि मैं हांगकांग जाऊंगा घूमने, आई हैड टू कैंसिल दैट प्लान क्योंकि मुझको पता नहीं था क्या है। देन आई गॉट टू नो इट्स वेरी सीरियस। देन इंडिया में न्यूज आने लगी, तो आप जानते हो इंडियन फैमिली क्या करते हैं, मेरे को फोन आने स्टार्ट हो गए, कैसे भी इंडिया आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। अब ऐसा थोड़ी ना फ्लाइट नहीं चल रही, मैं दौड़ के आऊँ या पैदल आ जाऊँ, चलो आज बरेली चलते हैं घूमते हुए टहलते हुए, सब खाली है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके का सिनेरियो पूरा भी था। लेकिन बाय द टाइम आई हैव सीन a lot of support from admin and the Beijing administration service, जो भी करते हैं, शी जिनपिंग करते हैं, कोई भी करते हैं। और ऑल ओवर चाइना में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, जिस तरीके से चीजें थी, इवन कुछ लोग जब वुहान में अचानक से लॉकडाउन हुआ था, तो वो लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था 6 घंटे के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, एंड दे प्रोवाइड डोर टू डोर डिलीवरी विद ऑल, वो जो किट होती है ना, लगता है एस्ट्रोनॉट है, ऐसी किट के साथ मेरा गार्ड भी बैठा था। हमारे एक बिल्डिंग के डॉक्टर भी पूरा वैसे ही बैठा था कि पूरा कि अभी बस ये जा रहा है मार्स, अभी मार्स जाने वाला है आदमी, पूरे तरीके से। इवन मुझको मास्क पूरा पहनना पड़ता था स्टार्टिंग में, तो हमने घर में भी मास्क पहने पूरे तरीके से। चप्पल पहनो, जूते नहीं पहने, जूते उतार दिए। ओहो, इंटेलेक्चुअल। क्या पहले? पजामा पजामा। देखो दादा, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट आर द 3 things that you feel is going to change about life on earth after this pandemic is over? Like, what are the 3 major things that you think that will be different? The earth we live, the way we have seen the earth, the small life that we have, क्या बदलने वाला है, क्या वो 3 चीज है it's going to change? देखो, हम पहला चीज तो मुझे लग रहा है दैट विल चेंज, आई थिंक मैं कंट्री के बारे में ही बात करता हूँ बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ माई कंट्री। आई थिंक मैं अपने गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करूँ तो आई थिंक ये जो वो तो रहने वाली है भाई, ये गवर्नमेंट जहाँ पे वहाँ पर रहने वाली है सबका। आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल वाले एस्पेक्ट को वो लोग गौर से देखेंगे। अभी तक तो इकोनॉमी को ही अफेक्ट कर रही थी पॉपुलेशन, करप्शन था एंड ब्ला ब्ला, करप्शन है और ब्ला ब्ला। तो आई थिंक इसके बाद
सीरियसली आई थिंक पॉलिटिशियंस और जो रूलिंग पार्टी है और फ्यूचर पार्टीज है, आई थिंक दे प्रोबेबली शुड और माइट थिंक ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्टली पॉपुलेशन कंट्रोल पे सोचेगी। बिकॉज अब सारे कंट्रीज तो खुल गए हैं, सारे कंट्रीज नंगे हो गए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द सुपर पावर, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, दिख गया हमें किस हालात में है। सो दिस इज द टाइम आई थिंक गवर्नमेंट माइट थिंक, एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, माइट रियली, ये जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, जो फंडिंग जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके, मोर्टालिटी रेट को लेके, फीमेल मेल रेशियो को लेके, आई थिंक उसके बारे में सोचेगी एक चीज़। दूसरा है आई थिंक ये एनवायरनमेंट जो क्लीन हो गया है, इसमें भी डिबेट हुआ है। सम न्यूज़ मीडिया ग्रुप्स आर रिपोर्टिंग दैट एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हुआ है, बट मुझे अपनी आंखों से, मुझे अपने फ्रेंड्स से और कुछ और वीडियोस में मैंने जो देखा है, वो देखा है कि हमारा इंडिया क्लीन हुआ है बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है फॉर द लास्ट 25 डेज। सो आई थिंक मैं खुद एज एन इंडियन, आई थिंक मैं ख्याल रखूँगा कि छोटी सी चीज़ कि मैं कूड़ा रास्ते पे ना फेंकूँ, उसको मैं और सीरियसली लेने वाला हूँ। बिकॉज वही कूड़ा जाके नाले में जाके बारिश के पानी से फंसेगा और फिर वही जाके मैनहोल में जाके फंसेगा। फैक्ट्रीज प्रॉबेबली, इफ़ आई एम एन ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, मैं अगर देख रहा हूँ यमुना साफ़ हो गई है, जो कि अगेन कई लोगों के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, कई लोग कह रहे हैं नहीं साफ़ हुआ है, अभी भी है प्रॉब्लम, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि फैक्ट्रीज बंद है। तो मेरे पास फैक्चुअल डेटा नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि फैक्ट्रीज प्रॉबेबली सीरियसली लेगा अपने सीवेज सिस्टम को, अपने डिस्पोजेबल का जो सिस्टम है पूरा, उसको रीवैम्प करें, उसको यमुना में ना फेंकें। ये सेकंड थिंग है। सो बिग ब्यूरोक्रेट्स, बिग कंपनीज विल थिंक मोर अबाउट द एनवायरनमेंट नाउ, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा अगर कोई नया वायरस आए, दोबारा उनको ये फेस करना पड़े। सो आई थिंक ये चीज़ होगा। और थर्ड थिंग विल बी आई थिंक रेस्पेक्ट टू लाइफ, रेस्पेक्ट टू, वैसे यही क्वेश्चन मेरा भी था, तो रेस्पेक्ट टू ईच अदर बेसिकली। अब मैं एंड आई एम श्योर सामने मेरे पड़ोसी और एक दूसरे को हम देख रहे हैं एक अलग ही नज़रिए से। दिल्ली में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, मेजॉरिटी लोग रेस्पेक्टफुल नहीं है एक दूसरे के लिए। इट्स अ वेरी पिंचिंग फैक्ट, बट आई फील नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये जो डिलीवरी लोग हैं, ये जो सब्जी वाले हैं, ये जो झाड़ू मार रहा है, इसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ चुका है और वो रजिस्टर रहेगा हर एक के मन में। हम लोग जो ये तू तड़ाक की बात करते हैं, इधर झाड़ू मार दे, ओ यार कूड़ा ले जा तू, अबे जो रेस्पेक्ट, जो कूड़ा वाला अभी जब आ रहा है ना, मुझे ना सच में लग रहा है कि वो मेरे लिए एहसान कर रहा है। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में भी यही बात बोली थी कि इन लोगों से ही हमारा शहर, हमारा देश चल रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। आयुष्मान खुराना ने भी एक पोएम में लिखा था कि इनसे ही हम चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हम तुम जैसे मिडिल क्लास लोग चल रहा है, बट दे आर द ग्राउंड रियलिटी, द रूट कॉज वाई वी आर फंक्शनिंग। ठीक है, मैं बेसिकली बोलूँगा हम लोग पाइपें हैं और पाइपों के बीच का जो होज है वो ये लोग हैं, ये कूड़ा उठाने वाला, सब्जी देने वाला, ये डिलीवरी बॉय। तो आई थिंक ये रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मेरा जो तीसरा थॉट है, वो जो ट्रैफिक पुलिस सामने खड़े होके हाथ दे के धूप में तुम्हें चालान काट रहा है, उससे हम बकचोदी ना करें, ठीक है, उसके हम समझें बात को। और ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स आ गया है, ये जो पुलिस डंडे मार रही है, ये रूल्स क्यों आता है, ठीक है, इस कब आता है, जब एकदम हेलमेट पहनने वाला रूल हम और रिस्पेक्ट करेंगे और भी ज़्यादा। बेसिकली विल पुट अ थॉट, वी विल वैल्यू पीपल, वी विल वैल्यू रूल्स। एंड ऑल्सो ये भी मैंने देखा है अभी ना इंडिया में पॉलिटिकल टू एंड फ्रो, पॉलिटिकल जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, वो घट गया है। चाहे वो ममता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी बीच बीच में बोला था, बट फिर भी ही इज़ मोर सपोर्टिव। सोनिया गांधी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अबाउट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो आई थिंक रेस्पेक्ट इज़ व्हाट आई कैन सी एवरीवेयर इज़ फ्लोइंग, हर एक चैनल में। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए अभी
now, right now I'm saying I could see that doctors has been brutalized, support staff has been brutalized again in Indore. हो रहा है, but ये ना I think ये उन गिने चुने सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है जिसको बदलने में टाइम लगता है. देयर इज ऑलवेज एन अगली डकलिन, देयर इज अ ब्लैक शीप ऑलवेज, बट ओवरऑल आई थिंक हम लोग रेस्पेक्ट और देंगे और ज़्यादा. आई फील सो. अगर अब नहीं देंगे तो अगली बार जब आएगा अगली बार मार पड़ेगी तो आवाज नहीं होगा मुझे लगता है. तो अभी हमें सुधर जाना चाहिए. यानी आप बता रहे हो कि अब इंडियन सिविलाइज्ड कहलाएंगे. अब इंडिया कंट्री सिविलाइजेशन वाली जो कंट्री होती है कि लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जैसे होता है, या आपने चाइना में भी मैं देखता हूँ काफी लोग रूल फॉलो करते हैं कि क्यू है तो सब क्यू में खड़े हैं. ये नहीं कोई आया अरे अब लोग फॉलो करेंगे सिविलाइज्ड. यस, Absolutely. I firmly think so. And the final question Right. which I want to ask both of you, and especially to Shivam Bhaiya. See, you are now in Beijing, in a country which is now merged in different types of controversies. मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आया. See, I know China is a beautiful nation which is doing all that it can to contain and keep the virus inside the country and not let the thing jump. But you just tell me, Shivam Bhaiya, what do you think? कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश में एक छोटा I will not say छोटा पर से, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में कंटेनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो वायरस उस देश के बाकी कोने में फैला ही नहीं उतना ज्यादा, बट suddenly it became a wildfire across the globe. This is one question that is coming into my mind all the time since the time I have heard Debudada's rant video. मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूंगा, मैं हल्का सा डेटा एस्पेक्ट से लेके आपके कंक्लूजन पे आऊंगा. देखिए यहाँ पे क्या है, चाइना में हर 10 लोगों में 2 फॉरेनर है जो टीयर सिटीज है, टीयर 1 सिटीज, जैसे कि बीजिंग रहा, शंघाई रहा, शेंजन रहा, ग्वांजो रहा. तो यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल चेंजेस अभी आए हैं पिछले 10 सालों में. सो दे डोंट प्रेफर एनी चाइनीज पर्सन हु इज गोइंग टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट कि वो चाइनीज हो. तो हमेशा फॉरेनर होता है, और फॉरेनर होता है नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज, जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज नहीं, वहां के वो लाते हैं हायर करके, एंड दे रिक्वायर्ड अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट लॉ उस चीज को लेके. ठीक है. सो अगर पूरा डेटा देखा जाए तो चाइना में मोर देन 2 to 3 million are teachers and they are earning so well. ठीक है. So what happened here? I'm also foreigner. तो जब lunar year आ रहा था, so in my office, each and every guy is asking me continuously, where are you going? Where are you going this holiday? Where are you going? Where are you going? And I was like, where should I go? आप लोग इंडिया में क्या करते हैं? छुट्टी पड़ी आओ वैष्णो देवी चलते हैं, मनाली घूम के आ जाते हैं, चलो घर ही हो जाते हैं. So all my thought is like, okay, जो भी होगा ज्यादा से ज्यादा मैं घर ही जाऊंगा, और तो मेरा नहीं कोई प्लान नहीं है. But here they have planned to go Japan, they have planned to go US, they have planned to go Italy, not US, Italy. और चाइना और US के लोग बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली आते जाते रहते हैं, ऐसा रहता है. ठीक है. तो क्या हुआ कि ये चीज, जैसा मैंने अपने पहले यहाँ पे आपने मुझसे क्वेश्चन मुझे बताया था, 20-21 तारीख के आसपास ये सारी चीजें हुई थी, तो होते होते 27 तक एक बहुत बड़ा चीज हो गया था. So what happened? जब वुहान में लॉकडाउन हुआ था एक साथ, वुहान इज अ टीयर 2 सिटी. वुहान रहा, चैंगनिंग रहा, हांगझो, अगर आपने सुना, ये सब टीयर 2 सिटीज हैं जो डेवलप करके बहुत ग्रोइंग, मतलब पूरी तरीके से बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ये सब. तो वहां से जब लोग आ रहे थे दूसरी जगह पे, तो वो अपने साथ वायरस लेके आए. उस समय यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने रिस्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाए. बाद में इन्होंने पकड़ा उन लोगों को जो वुहान से आए थे, उनको जेल में ही क्वारंटाइन करवा दिया कि तुम जेल में क्वारंटाइन करो, होटल में क्वारंटाइन करो, या जैसे भी ये करो. ठीक है. सबसे पहले ये. दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज ये गलत, हाँ, जेल में क्वारंटाइन करवा दिया था उनको, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई किया गया कि आप वुहान से कैसे जा रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी अथॉरिटी से वहां से बाहर जाने के लिए. और वहां पे हर चीज मुहैया कराई सरकार ने 6-7 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जैसे लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने वॉलंटियर अपॉइंट कर दिए थे. जो अभी इंडिया में हल्की सी अवेयरनेस रह गई ना लोगों को कि भीड़ इकट्ठी हो गई, चलो भाई आप तो बरेली जा रहे हैं, सब बस के पीछे खड़े हो गए, यहाँ बिहार जा रहे हैं, ये सब यहाँ पे इन्होंने वॉलंटियर बना देते तुरंत. जो वॉलंटियर थे ना, घर घर जाके चीजें स्प्रेड कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ताकि एक साथ जो लोग रोड पे आएंगे ना, वो चीज अवॉइड की जा सके यहाँ पे.
कि एक साथ लोग फ्लाइट बुक कर रहे हैं, चलो भैया भागो भागो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं कहाँ से ये चीज आई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वॉलंटियर का जो काम था वो बहुत ही अच्छा था। तो इन्होंने वो वॉलंटियर के अपॉइंट करने के साथ साथ अब क्या हुआ था कि जो फॉरेनर्स थे उनको जाना था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो लोग फंसे थे वुहान में, उनको हमारी सरकार लेके गई भारत में। तो इंडिया के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड और भी कंट्रीज के लोगों को लेके गई सरकार अपनी अपनी जगह। तो चाइना ने पहले वॉर्न किया, इटली के तो एथलीट यहाँ पे थे, तो इटली के लोगों को उन्होंने कहा था कि आप क्वारंटाइन होंगे उन एथलीट को। जो तो उन्होंने क्या करा था कि दे टुक सम ऑफिशियल्स हेल्प और समथिंग, तो वो इटली चले गए। They went to Italy. They had several marathons, several cities around Italy के अंदर ही। तो उन्होंने वहां करे, they were social, they went to club every night or something। तो वही चीज कि आपके अंदर कोरोना है लेकिन वो सिम्टम नहीं आ पा रहे हैं, बट उन्होंने करा। और वहां की गवर्नमेंट ने इतना सीरियस नहीं लिया इस चीज को लेके। 80% ऑफ कोरोना आउटब्रेक इन इटली। सिमिलर थिंग हैपेंड इन कोरिया। कोरिया में जब आपने पक्का सुना होगा ये चीज कि कोरिया में जब लॉकडाउन हुआ था तो वहां पे उन्होंने काफी लोगों को जब क्वारंटाइन करा था अपने हॉस्पिटल में, तो एक आदमी भाग गया था और उसने वहां रिपोर्ट की थी और कोर्ट को रिपोर्ट की थी कि जो मुझे गवर्नमेंट क्वारंटाइन की फैसिलिटी दे रही है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों से गया, वो पुलिस स्टेशन गया, वो कोर्ट गया, वो वकील करे, सब करे। वन गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ आउटब्रेक इन कोरिया। These things happen। अब ये चीज सामने ये नहीं आई कि किसने बताया नहीं। China told to each and every guy you are not going outside। जब लोग नहीं माने इसके बाद उन्होंने फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। सिर्फ एक जगह की फ्लाइट चालू थी उस टाइम पे, वो थी रशिया की, और एक थी इंडिया की फ्लाइट चालू। लेकिन बाद में इंडिया की फ्लाइट उन्होंने बंद कर दी। और तो इस तरीके से क्या हुआ ना, जो आपने कहा कि कैसे फैला, दैट्स हाउ इट्स ऑल स्प्रेड। अब मेरे को जैसे मैसेज करके लोगों ने पूछा कि अरे तुम्हारे बीजिंग में तो कोई केस नहीं है, सब खुल चुका है। आई वाज एट होम, उस समय तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। मेरा स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी को, और मुझसे वैलेंटाइन डे के आसपास लोग पूछ रहे थे 14-15 तारीख को, जब ये सब चल रहा था फेसबुक पे सब, कि अरे तुम तो मजे में हो, तुम्हारा तो उधर सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। एंड लेटर ऑन एक डेटा रिवील हुआ कि चाइना मोबाइल का ये डेटा आया है, इतने लोग ये चले गए, लापता हो गए, ये हो गया, वो हो गया। द थिंग इज देयर आर, एज आई टोल्ड यू, सो मेनी फॉरेनर्स। पहले वो डेटा रिवील होता है, अगले दिन चाइना में 2 मिलियन जॉब्स आती हैं फॉरेनर्स के लिए, ऑनलाइन पोर्टल और इंटरनेट इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो दैट डेटा इज मैच, क्योंकि फॉरेनर छोड़ के चले गए। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे आर स्टक इन यूएस करंटली एंड दे रियली वांट टू कम हियर, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से चीजों को रिकवर किया था वो बहुत ही कमेंडेबल मैं कहूंगा। कैब में सेगमेंट कर दिए, पन्नी है, आगे वो बैठा है ड्राइवर, और जैसे 2 जने बैठेंगे तो बीच में भी उन्होंने कुछ सेक्शन कर दिया पन्नी लगा के, ताकि आइसोलेटेड हो गए, गेट खोल के बैठो आराम से। इनके सामने मास्क नहीं है, लेकिन ड्राइवर आपको मास्क देगा, और जैसे आप अंदर आते हो तो वो सैनिटाइज खुद ही करेगा आपको सैनिटाइजर देके, ताकि आप आराम से बैठो। ठीक है। फिर अगर जैसे कुछ जगह पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे डेली सुबह मैसेज स्प्रेड होता था कि आज इस एरिया में मत जाना, यहाँ पे इतने सस्पेक्ट पाए गए हैं, या अगर आपका ऑफिस यहाँ पर है तो यहाँ नहीं जाए, यहाँ पे 2 सस्पेक्ट हैं, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। सो दे हैव गिवन ऑल अवेयरनेस टू द पीपल सो दैट दे विल प्लान अकॉर्डिंगली कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। दैट्स हाउ दे ट्राई टू स्टॉप इट। लोग परेशान हुए जिन्होंने लॉ तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि गाड़ियों पे इन्होंने पहले लगाई रोक, पहले गाड़ियों पर रोक नहीं थी, फिर उन्होंने व्हीकल सारे बंद करे, फिर शॉपिंग धीरे धीरे करके लॉकडाउन करा। अभी क्या है, जैसे पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है एक तरीके से, व्हीकल अलाउ है, शॉपिंग मॉल सारे बंद हैं, जहां पे भी गैदरिंग होती है वो सारी जगह बंद है, डिस्क बंद है, रेस्टोरेंट सब बंद है, सभी जगह। और अगर एक छोटी सी दुकान भी स्टेशनरी की, मैं पेंसिल लेने जाऊं अगर वो मेरे को अगर वो नहीं करता है तो उस पर फाइन इम्पोज होगा। क्या बोलते हैं, स्कैन नहीं करता, उस पर फाइन इम्पोज होगा। तुमने स्कैन क्यों नहीं करा? ठीक है। एंड इवन अगर मैं बात करूं अपनी कंपनी की, नॉट इवन माय ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जो फ्रेंड है रशिया के अकीम, उनकी कंपनी भी, दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ पोर्टल जहां मुझको डेली अपना टेम्परेचर फीड करना है, एंड डेली आई एम गोइंग टू शेयर माय लोकेशन विद देम। मैं उन्हें अलाउ करूंगा सो दैट दे कैन ट्रैक कि मैं बीजिंग के किस किस एरिया में था। एंड माय ऑफिस हैज स्टार्टेड इन February लास्ट वीक, सो आई वेंट देयर, सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस। दे हैव रीचेक कि वाकई में ये आदमी सच बोल रहा है, ये बीजिंग में था या कहीं और था।
अगर मैं कहीं और था, then company also created some kind of quarantine house. You should be there for 14 days. Even each and every floor, मेरे कंपनी के एक डॉक्टर था और वॉलंटियर टीम थी. अगर मेरा मास्क नीचे हो रहा है, so they will come and they will tell me, mask every time. एक बार क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर से कॉल आया, मैं बात करते करते चला गया टहलते हुए थोड़ा फ्लोर पे ही, तो वॉलंटियर आ गए एंड दे वाज फाइन ऑन मी. इट्स गुड, ताकि मुझे अगली बार याद रहा. अब मुझे याद रहता है कि अरे मास्क लेके जाऊं या कैसे. अगर मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ, मेरे पास मास्क नहीं है, दे वोंट अलाउ मी टू गेट एंटर. और बाहर अगर मुझे पुलिस ने देख लिया तो मे बी मेरे ऊपर तो फिर से इम्पोज हो जाएगा फाइन कि अरे आपने मास्क नहीं लगाया. कितना फाइन हुआ है इस तरीके से तुम्हें? मेरा तो 7,000 रुपए कटे, 7,000 रुपए कटे थे मेरे सैलरी के कि मास्क लगा हटा के मैं घूम रहा था. मतलब जो भी था, जो भी गलत है. So Shivam, what I think, I'm interrupting. So what I think is what you're trying to, your perspective, you're trying to say that during this outbreak, foreigners who are non-resident of China, they left the country to their home countries. Obviously, they had major amount of infection. In spite of the warnings that were In given spite by of the the Chinese warning, government. and Chinese local resident citizens, like here in India where we go to Bareilly और कानपुर और मेरठ अपने अपने घर, वहाँ पर चाइना में ऐसा नहीं होता. They stayed there, right? Is that what you're trying to say? Like Chinese लोग अपने सिटी छोड़ के नहीं गए, जिसकी वजह से स्प्रेड नहीं हुआ. इंटरनेशनल लोग बाहर चले गए, कंट्री के बाहर, तो दैट वाज द रूट कॉज, वन ऑफ द रूट कॉज यस फॉर द स्प्रेड. और चाइना में नहीं स्प्रेड हुआ, दुनिया भर में स्प्रेड हो गया. हाँ, सेकंड रूट कॉज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको. द फर्स्ट कंट्री हु स्टॉप द फ्लाइट, डेयर टू स्टॉप द फ्लाइट फ्रॉम चाइना इज सिंगापुर. सिंगापुर पहली कंट्री थी जिसने फ्लाइट बंद करी थी कि हम चाइना से नहीं लेंगे किसी को. सेकंड कंट्री इज जर्मनी. जर्मनी डिसाइड करा हम नहीं लेंगे. कोरिया ने तो काफी लेट किया था डिसाइड, लेकिन टिल दैट टाइम इट वाज बीइंग सेड टू बाय WHO सो मेनी टाइम इन यूनाइटेड स्टेट्स. आपने ट्रम्प के इंटरव्यू सारे देखे होंगे, मैं श्योर हूँ शब्द की भैया आपने तो देखे होंगे. ही वाज लाइक वेरी कैजुअल कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा. एंड इवन माय फ्रेंड्स ओवर देयर, दे ऑल वर वेरी मच वरीड कि क्या करेगा ये, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है. एंड सडनली ऑल इट हैपेंड, क्योंकि उसने चाइना से फ्लाइट बंद कर दी, बट इटली से फ्लाइट अभी भी चालू है. वहां पे आउटब्रेक चला है यूरोप में, उसने फ्लाइट अभी चालू रखी है मार्च तक. सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे ना एक रिस्पॉन्सिबल होके काम करना था. हाँ, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट को टाइम लगा, मैं इसको कहूंगा कि टाइम लगा या छुपाया, कुछ भी आप मान लो, कि ये लोगों से फैलता है एक तरीके से जो लोग कह रहे हैं. लेकिन लेटर ऑन व्हाट दे डिड, उन्होंने उस डॉक्टर को कैसे एक्नॉलेज किया. दे हैव गिवन द बेस्ट ब्रेवरी अवार्ड और समथिंग फ्रॉम चाइना, जो भी होता है, जैसे अपने भारत रत्न है यहाँ पे जो भी रहता है. एंड इवन दैट गाय इज लाइक जस्ट लाइक माओ सर, और अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी लीडर. उसका नाम उन लोगों के बीच में है. His family is rewarded and the government said sorry. कोई ये बात ही नहीं बताता. And the government said sorry to that family कि हमने ये सोचा नहीं था ये ऐसा आउटब्रेक होगा. Like, did you watch Harry Potter? So there comes a point in the Harry Potter stories where Lord Voldemort is back. Harry Potter is telling the world that Lord Voldemort is back, but the Ministry of Magic doesn't want to acknowledge the fact that every country in the beginning did not want to acknowledge this fact that there is a problem. First point of investigation into an epidemic should be acknowledging the problem, that there is a problem. अरे हाँ भाई, problem है, पहले इसको acknowledge कर लेंगे ना, तो उसके बाद we can move lucidly, fluidly. तो मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल सोच है, गलत भी हो सकता है, कि China took a lot of time to acknowledge that this might be a problem beyond the borders also. I think that is the major problem. That's why it got so far and wide. It's okay, we will recuperate. We are human beings. Yeah, absolutely. And I also think that I remember, I'm sure it is factually correct, Indian Health Ministry declared this not as a health scare at around, I think, second week of March or first week of March. They declared, which is why this Jamati thing happened. And so acknowledgement, I would say, for every country at different level or frequency, they did not acknowledge. So Exactly. Shivam,
पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, मैं छोटा सा इसी बात को लेके, जैसे कि सप्तऋषि भैया आपको पता होगा, देवाशीष सर आपने भी पढ़ा होगा न्यूज में कि जब यहाँ लॉकडाउन हुआ था ना, सारे वर्ल्ड ने बुराई करी थी चाइना की कि वो ऐसे लॉकडाउन क्वारंटाइन कर रहे हैं जो कि गलत है, ये वो पता नहीं क्या क्या, बट एक्चुअली दिस इज द सोल्यूशन। अब नाउ जब उनके साथ उन्होंने भी यही करा, क्योंकि वही है ना, एक्नॉलेज करने में टाइम लगा चीजों को कि क्या करा जाए, कैसा क्या है, ये चीज है। So great. So now this we can end our questionnaire session with my last. I have my third question left, and this is a good moment. This can be very subjective, but I want you guys to just answer in one sentence, not more than that, because this can be an endless debate, like more episodes than an Ekta Kapoor serial. उतने episodes हम बना सकते हैं इसके. So my question to both of you is, feel free to start off. One best step that you think Indian government took during this pandemic, and one severely wrong step. One and keep it very short. And we the point is not to debate, just our opinion. Okay. Yeah. Okay. The best thing done by Indian government is to practice the people with Janata curfew. It was all well planned thing. I really appreciate that thing. It was really good. But the worst thing is like sudden lockdown without any volunteership. That's the worst thing. It's a kind of similar thing, but that's the point. So शिवम, जनता कर्फ्यू के लिए हमारे पास कितने 2 दिन प्रिपरेशन का था आई थिंक, बट लॉकडाउन के लिए 3 घंटे 3 या 4 घंटे थे, 9 बजे अनाउंस हुआ था। 3-4 घंटे थे। वीडियोस तो देख ही सकते हैं, अभी भी है फेसबुक पे कि जनता कर्फ्यू में क्या क्या हुआ, क्या क्या गुल खिलाए भारतवासियों। We'll talk about the buffoons also. Yeah. So Saptarishi, Shivam, you want to add to? According to me, the best step of Indian government is the information, education, and communication materials that are being spread. Like one of the important thing is the message that we get while we call. Okay, it creates a lot what I will say, बहुत information देता है जनता को, तो हाँ, that counts. And one of the worst step, according to me, is not ramping up the number of tests at the proper time. कुछ जगह पे ऐसे हो रहा है ना, that the governments or the authorities are thinking कि थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, and after that suddenly they're exploding. True. मैं हल्का सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, व्यूअर को कुछ अगर अजीब लग गया हो यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जनता कर्फ्यू इज गुड और लॉकडाउन खराब है। लॉकडाउन तो सोल्यूशन था, अब प्लान थिंग इज वुड बी बेटर। मेरा मतलब लॉकडाउन तो था सोल्यूशन, बट अब शुड बी प्लान, लाइक पुतिन डिड, ही गिव वन डे कि सब कर लो, सब कुछ कर लो एक दिन में, इतनी तारीख से बंद हो रहा है। मतलब I would say Putin did not have 1.3 billion people in his country. Okay, so that's amazing. That's amazing how we have put our points through. This has been a great experience. I would like to talk about the buffoons now. A quick thing. सबसे erratic, सबसे funny और सबसे चूतिए लोग आपको कौन सा लगा सबसे ज्यादा पूरे इस पैंडेमिक में, जिसको आप सीधा I will like to start. ये होता है ना कि in West Bengal when we are very ecstatic about something that is happening every year, right? Like Durga Puja, it's a big thing for us Bengalis, right? So we say when we go for the Visarjan of Ma Durga, तो हम लोग एक बात बोलते हैं, आश्चे बछर आबार होबे, which means that we will have the same thing next year. So this time around, celebration, same happiness. So this time around, when Modi ji came and said, "Tali bajao, thali bajao," as a gesture, as a mark of respect towards the people who are giving the essential service, I saw this video where people came out. They started playing drums, dolls, ये वो, जैसे we are having a huge celebration of Durga Puja, and some people were so stupid. इतने महान चूतिए थे, वो लोग बोल बैठे, आश्चे बछर आबार होबे. Think about this. Oh भाई साहब, so we got यहाँ पे
एक चीज और है, छोटी सी, एक जैसे अपने प्लेटफॉर्म ही है, एक चीज कह सकते हैं लोगों को, जैसे कि मोदी जी का मतलब ये नहीं था कि आप एक ही दिन लोगों को सल्यूट करें, ताली बजाएं, दिए जलाएं। So the You can motivational दिल से है, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। ही इज अ गुड लीडर, वो इंडिया को लीड कर रहे हैं, तभी वो बता रहे हैं आप कैसे करिए। इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने एक दिन कहा आज ही अपना मुंह जला दूं, वो आदमी वो जलाता है ना, अपना मुंह जलाता है। ओ भाई साहब, ये थोड़ी वो देखा है जो थाली अपने सर पे ऐसे ऐसे मार रहा था, ऐसे थोड़ 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 करके। ए भाई साहब पूछिए मत, सोसाइटी काम हो जाएगा। भाई मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, दिस इज स्पेशली फॉर माय कंट्री। एक सेकंड प्लेन बारिश नहीं प्लेन अरे हमें आवाज नहीं आ रही है। मैं और गया नहीं आ गया गया हाँ भाई। गया। मेरे को बस और एक चीज बोलना है, बस ये चुप्पियापा के बारे में। ये इंडिया में मैं हमेशा देखा हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट एनीथिंग, वो हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए, वो हम लोग का अच्छा मूवी बना ले, जंग हो जाए या कोविड-19, एक चीज चूतिया लोग करते रहे, दैट इज कम्युनल डिसहार्मनी। ठीक है, एक कम्युनिटी पे पॉइंटिंग फिंगर करना है तो वेस्टर्नर्स और रेसिस्ट, ये रेसिस्ट, हम लोग कितने रेसिस्ट है भाई। एक कम्युनिटी को देख के हम लोग उंगली पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, एंड द नेक्स्ट मोमेंट दैट आई फाइंड इज द कम्युनिटी हु वे आर पॉइंटिंग फिंगर्स, नाउ 4 फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट देम। भाई मैं सबको मतलब हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी, कोई भी दुविधा सोसाइटी में कम्युनिटी को देखकर नहीं आता है। स्टॉप इट, टाइम ही नहीं है, सॉलिडारिटी का टाइम है भाई। अब तो समझ लो, मरने वाले हो भाई, ना कब्र की जगह मिलेगी, ना शमशान घाट में जलने की जगह मिलेगा, रास्ते में पड़े रहोगे बैंचों, कभी समझ में ही नहीं आएगा कि तुम्हारे बगल में चला मुसलमान है या हिंदू है या पारसी ईसाई है, कौन है। ये मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे बड़ा चूतियापा है। पॉपुलेशन से भी ज्यादा प्रॉब्लम ये है हमारे देश का, बिकॉज ओनली बाय स्टैंडिंग टुगेदर यूनाइटेड इन सॉलिडारिटी, staying home is the only way we can protect ourselves, our families, our country, and in a protect this world. So this is my earnest request in this podcast video that I want to do. And also thank you Devu Dada, thank you Shivam Bhaiya to give me this platform. मुझे बहुत अच्छा लगा, but आपसे भी बहुत सारे insights मिले, especially about China, जो शायद ही हम लोग को सोशल मीडिया में मिल रहा होता है। But I'm really feeling good, and thank you for giving me this opportunity once again. Brilliant. Thank you so much. Thank you so much. Great man, this was really amazing. I hope for those who are watching this, they were enthralled, they were intrigued. A different point of view was created by if you watch this full length. So Hashtag don't stay safe. stay safe. Yes, hashtag stay safe. Stay home, stay safe, and keep giving gratitude to each and every people. Absolutely. Thank you guys. This was amazing. Thank you so much, sir. Or See you next time. it was wonderful. Thank you for spending time with on our channel. It was great. I'll Same here. hopefully we'll meet soon, and we'll probably do a podcast soon in the near future. And for our viewers, if you enjoyed this podcast, please feel free to follow Shivam and Saptarishi on their Instagram handles. I'll put that up on the description, as well as subscribe to our channel and watch our more content to have a laugh and relate to your life. Thank you for watching Candid Podcast. We will see you very soon. Bye. पॉडकास्ट होते अपनी मन की बात के बारे में बात करते हैं। मन की बात नहीं बात करना तो चलेगा, बोलते और अगर तुमने से नहीं बोले तो बात बनेगी कैसे, और अगर बात ना बने तो फिर आगे आपका काम कैसे चलेगा। इसीलिए दिल की बात, इसीलिए दिल की बात बोलो, क्योंकि दिल की बात बोलने से कोई हर्ज नहीं है। आज बंदे को बुरा लगेगा, पर कल वो सोचेगा बंदा इसने एटलीस्ट सच तो बोला। कैंडिड पॉडकास्ट। सर याद है मैंने प्रेम रतन धन पायो का रिव्यू करा था, मैं बियर पी के प्रेम रतन धन पायो देखने गया था पिक्चर। ओ भाई साहब, मेरी दारू उतर गई थी पहले से। क्या बोला था तुमने? सोनम कपूर कैसे भागी थी? जैसे क्या कुत्ते पीछे पड़े हैं? क्योंकि आप
सही लगा? अच्छा हो। सही लगा? अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, बहुत सही था एकदम बढ़िया था। और मैं ये कह रहा था ग्रुप डिलीट मत करना। अब ये स्काइप पे मैं बहुत सारी मूवीज से रिलेटेड चीजें शेयर करूंगा, तो मैं इधर उधर ग्रुप पे कर रहा हूँ राम आजकल। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा शिवम भैया। मेरे को बहुत दिन से मन था to meet Debuda's other associates. I have heard a lot about you people, so now it is good. So now I am Thank you. slowly expanding my horizon. आपसे ही बढ़ेगा एक्चुअली कह रहा कि ये जो मूवी वगैरह ये सब शॉर्ट फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। I always had this kind of this करूंगा अपना कुछ होगा वीडियो वगैरह, but I never had this skill of editing and all. So it was only Debudada, through him I started speaking in review videos, doing short films. तो बहुत मिले, बहुत accolades मिले, अच्छा लगता है। Like we are doing मैं something beyond यहाँ our पे kind. मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा देवाशीष सर के लिए। जैसे कि मेरी जब पहली जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब कैंपस के बाद, पहला प्लेसमेंट, पहली जॉब, पहला दिन, मेरी और देवाशीष सर की ज्वाइनिंग एक ही दिन एक ही कंपनी में थी, क्रिएटिव ऑफ सॉल्यूशन। तो बाय द टाइम हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तो वन डे आई वाज जस्ट गिविंग अ आइडिया अबाउट अ ट्रेलर, देन ही आस्क्ड मी कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा अरे किसी ने पहचाना मेरे इंटरेस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन तब तक ये रहता था कि मैं मूवी बफ हूँ या एक्टर हूँ, मैं मूवी बफ हूँ या एक्टर हूँ, क्योंकि मूवीज इन सबको अच्छा लगता है, शायद मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन बाय द टाइम हम दोनों, फिर दूसरी कंपनी भी सेम थी हमारी, ऑक्ट्रो। जब ऑक्ट्रो में गए तो हम वहाँ पे और ज्यादा डिस्कस करते थे मूवी को,